اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ایک بھائی نے سوال کیا جے بھائی الامین تم دیوبندی علماء کو فالو کرو۔ ابر کامنٹس میں لکھا کہ بھائی الامین عیسیٰ علیہ السلام ان قریب نازل ہوئیں گا۔ تو میں اس بھائی کو بولنا چاہتا ہوں، کیا ابھی بھی آپ لوگوں کو یقین نہیں ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیلی فوت ہو چکا ہے؟ اب کس کے پر کون سے دلیل سے آپ انتظار کر رہا ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان میں زندہ، یہ تو قرآن میں ہی ثابت ہوتا ہے۔ میں جب سعودی عرب سے ایک علماء کے پاس پوچھا نا عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہے، قرآن میں کدھر لکھا ہے؟ تو وہ لوگ مجھے آیت پڑھ کے سناتا ہے، اما قتلہم اما صلبہم ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ۔ دوسری آیت بھی مجھے سنایا۔ میں بولا اچھا ٹھیک ہے، قرآن کا یہ آیت جو دی آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام کے شریر کے ساتھ آسمان میں جایا بتایا، تو عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پرتھوی زمین میں آئے گا؟ قرآن میں لکھا ہے؟ نہیں، قرآن میں تو نہیں لکھا ہے۔ وہ لوگ بولا حدیث میں آیا ہے۔ میں بولا اوکے، حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں نزول کا استھان آیا ہے، دو فرشتہ کے کادوں پہ بھر کر کے دمشق کے سفید مینار کے پاس نزول ہوگا، یہ لکھا ہے۔ اوکے، میں بولا قرآن میں جب آئے حدیث پاک تو تا کلیئر کے ساتھ برننا کرتا ہے۔ قرآن میں آیا نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، تو حدیث میں کون طریقہ سے کس نے پڑھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھایا۔ جب بھی آیت قرآن میں آیا، اب دیکھیں روزہ قیم الصلاۃ آئے، اور صلاۃ سیام کے بارے میں آئے، جب بھی آیت آئے تو کس طریقہ سے کرنا، نماز، روزہ، حج، ایوری تھنگ سب حدیث میں آئی۔ تو میں جب تحقیق کیا نا، تو میں دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو آیت اس لوگ سنی لوگ، شیعہ لوگ، وما قتلہم وما صلبہم ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ، یہ آیت کو رفعہ اللہ الیہ، اللہ کے پاس شریر کے ساتھ لے جا، یہ لوگ یہ سمجھتا ہے۔ تو میں جب تحقیق کیا تو کدھر بھی کس کی حدیث میں بھی، امام ابو قول کی بھی، کسی بھی پارٹ میں یہ لکھا نہیں ہے کہ شریر کے ساتھ جایا۔ جب بھی میں مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام شریر کے ساتھ، یہ آیت کے میننگ جب مان ہی لیا کہ شریر کے بعد وہ آسمان میں جایا، تب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے تو کچھ ہی نہیں پتا ہوا، کیونکہ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں قرآن میں برننا کرتا ہے تو حدیث میں ڈیٹیلز آتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ رہا تو حدیث میں کیوں نہیں بولا؟ کون کیفیت سے رہا، کیسا کر رہا ہے؟ جب معراج کی گھٹنا ہم لوگ سنتا ہے نا، آپ لوگ سنیے، سمست علماء کرام، آپ تو انٹرنیٹ سے
आप लोग सब फिरके लोगों को, आलिम उलमा को, लोगों का बयान आप सुन सकते हैं। तो अल्लाह का रहमत है। आप समस्त उलमा किराम समस्त फिरके उलमा किराम को मेराज की घटना जब आप सुने ना, तो देखिए जब वो लोग बोला कि ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज हुआ, तब पहले आसमान में, सेकंड आसमान में, थर्ड आसमान में समस्त अंबिया किराम के साथ मुलाकात हुआ। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी मुलाकात हुआ। तो मैं तो अचानक चमके जा, क्या है, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ भी मुलाकात हुआ। एट लास्ट मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मुलाकात हुआ, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपदेश दिया कि आप 50 वक्त नमाज तो आपका उम्मत नहीं कर सकता है, आपका उम्मत के लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आप एक काज करें, आप अल्लाह पाक के पास गुजारिश करें कम करने के लिए। तो हम लोग सब लोग को तो एक घटना वाक़या जाना है। एट लास्ट 5 वक्त सलात हम लोगों को नहीं आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अकीदा तो हम लोग सब जानता है कि वो जिंदा है, वो आबार आएगा। उस वक्त भी ईसा अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोला कि मैं दोबारा आएगा वगैरह वगैरह, नहीं बोला। आप लोग अकल का इस्तेमाल करेंगे भाई, यह बहुत ज़रूरी है। ईसा अलैहिस्सलाम आप लोग जहाँ समझता ना कि वो लोग जिंदा है, वो दोबारा उस बॉडी के साथ दुनिया में आएंगे। आप लोग तो ख़त्म नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, वही का दर्जा बंद हो गया है तह भी मानता है। लेकिन दूसरा आप लोग वही दर्जा बंद हो गया तो मानता है, दूसरा आप लोग ईसा अलैहिस्सलाम का वो जिस्म के साथ दुनिया पे आएगा, यह भी मानते हैं। क्या वो भी होता है। ईसा अलैहिस्सलाम 2000 साल पहले कौन सी कैफियत से बात करते हैं, कौन सी लैंग्वेज में बात करता है, आप जानते हैं? वही लोग जो ईसा अलैहिस्सलाम जब आप आएंगे ना, वही दर्जा तो बंद हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। तो कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे? तो वो जब 2000 साल पहले जिस लैंग्वेज में वो बात करते हैं ना, तो उस लैंग्वेज की पड़ेगा आएगा, क्योंकि उसके तो अल्लाह पाक फरिश्ता क्यों भी उसके पास नहीं पहुँचता है, नहीं सिखाते हैं। क्योंकि आप तो अकीदा यह है कि कुरान पाक नाजिल हुआ है और उसके बाद नहीं आएगा, वही नहीं आएगा। तो क्या सिखाते हैं? वो तो ज़मीन पर आए, कुरान लैंग्वेज सब सीखना पड़ेगा। तो ज़रूर समझिए, अकल के इस्तेमाल करिए। बाद में यह बोलना चाहता हूँ, मान लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगा, बनी इसराइली ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगा, ज़मीन में आएंगा, दोबारा आएंगा। तो कुरान में जिस आयत आप लोग पढ़ता है, अमा क़तलहुम अला अमा सलबहुम वलाकिन शुब्बिह लहुम बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला, तो ईसा अलैहिस्सलाम को उस लोग यहूदी लोग ना कत्ल करे, ना सलीब पे दिए, अल्लाह के पास वो रफ़ा हुए। तो ईसा अलैहिस्सलाम, मेरा क्वेश्चन यह है, आप लोग अकल के इस्तेमाल करें भाई। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएगा तो इस कुरान तो पढ़ेगा ना। आप लोग बोलते हैं इस कुरान के मुताबिक ही वो अमल करेंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम जब एक कुरान ये आयत पढ़ेगा, वमा क़तलहुम अला अमा सलबहुम वलाकिन शुब्बिह लहुम बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, तो
देखिए भाई, आपका चोख, आप लोग तो अंधो है। आप लोग उलमा को, आलिम को अंधभावे फॉलो कर रहा हो भाई। समझ के आए, समझने के लिए चेष्टा करिए, तहकीक करिए। जब ईसा अलैहिस्सलाम खुद पढ़ेंगे कुरान के पास, कुरान के कुरान हाथी ने ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ेगा, वमा क़तलहुम अमा सलबहुम वलाकिन शुब्बिह लहुम बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। ईसा अलैहिस्सलाम खुद पढ़ेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम आकाश में है और ज़मीन में कुरान के पास। बेटा वो पढ़ेगा, वो थकेगा कुरान के पास और वो पढ़ेगा आकाश में। ईसा अलैहिस्सलाम जब इमाम के पास नमाज पढ़ेंगे ना, इमाम जब पढ़ेंगे वमा क़तलहुम वमा सलबहुम वलाकिन शुब्बिह लहुम बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, आपका अकीदा मुताबिक जब भी मैं मान लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा ज़मीन में आएगा शरीर के साथ, तो देखिए कुरान के साथ क्या टक रहा है। इमाम के पास ईसा अलैहिस्सलाम जब तरावी नमाज पढ़ेगा, सपोज इमाम जब पढ़ेगा ईसा अलैहिस्सलाम इमाम का पीछे जब नमाज पढ़ने के लिए इधर आएंगे ना, इमाम पढ़ेगा वमा क़तलहुम वमा सलबहुम वलाकिन शुब्बिह लहुम बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। आपका अकीदा मुताबिक जब ईसा अलैहिस्सलाम को ये आयत का मीनिंग आप लोग आसमान में समझते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएगा ना, कुरान आयत तो क्यों कैंसिल नहीं कर सकता है। कुरान आयत तो क़यामत पर्यंत आएगा है। जब कुरान आयत मनुष्य दिल से उठे जाएगा तो सब उठे जाएगा। मास खान के इस आयत के शुद्ध ओनली नहीं उठाया जाएगा, इस आयत तो थकेगा। ईसा अलैहिस्सलाम जब पढ़ेंगे ना, इस्लामी हुक्म, इस्लाम की शरीयत के जब फॉलो करेंगे ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम इमाम के पास जब रहेंगा, इमाम पढ़ेंगा और रफ़अ अल्लाह इलैहि, तब ईसा अलैहिस्सलाम क्या करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम का ज़रूर बात नहीं पढ़ेंगे, थमा के पढ़ेंगे इमाम के। नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन में नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम तो आसमान पे नहीं, ज़मीन में है, टकरा जाएगा ज़मीन के। भाइयों, कुरान सच्चा है, कुरान कभी भी भूल नहीं हो सकता है। कुरान का ज़ेर ज़बर एक वक्त नुक्ता भूल नहीं हो सकता है। हम तो मुसलमान हैं, हम लोग मुझे बोलता है कि कुरान सच्चा है, लेकिन अब जे अकीदा रखता है ईसा अलैहिस्सलाम आसमान में जिंदा में आएगा, तो जिंदा आएगा। कुरान के आयत अभी भी आप लोग कर रहा हो, वमा क़तलहुम वमा सलबहुम वलाकिन शुब्बिह लहुम बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि। अल्लाह ताला के पास का रफ़ाने से जब अल्लाह ताला पास जब ये आयत का मीनिंग आप लोग यहाँ समझते हैं कि रफ़ा हो गया, तो रफ़ा हो गया ही है, उसको दूसरा मीनिंग नहीं कर सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम खुद नीचे पढ़ेंगे कि वो रफ़ा आकाश में है, रफ़ा इलाही होता अल्लाह के पास है, खुद कुरान के पास वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम बैठा होगा। ये नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। समझना है भाई, समझने के लिए कोशिश करिए। आँख बंद कर किसी के पीछे नहीं चलना, अकल इस्तेमाल करिए, कारो खिलाफ नहीं बोलिए। मुसलमान तो बुरे कमेंट्स देते हैं, गंदे गालियाँ देते हैं। मुझे नहीं समझना है इस तरह मुसलमान है। नाम देखे तो मन है, मुझे लग रहा है कि अच्छे मुसलमान है, लेकिन नाम का मुसलमान है। गाँव की भी गालियाँ, बुरे गालियाँ नहीं देना चाहे, ये तो ठीक नहीं है। आप मुझे भूल हुआ तो मुझे समझने के लिए, मुझे शुद्ध करने के लिए कोशिश करिए। नहीं गाली देना चाहिए, किसी भी इंसान के भी नहीं गाली देना चाहिए। तो भाइयों, ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान में समझना ये बेवकूफ़ी है, कुरान के खिलाफ है। ईसा अलैहिस्सलाम खुद ज़मीन में आए तो कुरान ही पढ़ेगा, कुरान में वो
जब आप लोग जो आयत को आप लोग आसमान में समझता है, वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन में आए तभी भी आसमान में ही पड़ेगा, एक ही हो सकता है। वो लोग अकल के खटाने के लिए, अकल के खटाने के लिए कोशिश करिए। ज़माना बहुत कठिन वक्त चल रहा है, मुस्लिम तकलीफ में है। ओनली मुस्लिम नहीं, समस्त इंसानियत के बचाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम नहीं आए। इस्लाम की विजय के लिए आखिरी ज़माना है, ईसा महदी अलैहिस्सलाम का आना का भविष्यवाणी किया। तो भूल अकीदा को छोड़े। कादियानी हजरत, मैं बोलना चाहता हूँ, कादियानी हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब, क्या आपके नज़दीक क्या लग रहा है? वो छोटों से झूठा है, कज़्ज़ाब है, ओनली दज्जाल है। आप लोग क्यों मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अहमदिया जमात को मसीह दज्जाल नहीं बोल रहा हो? क्यों? ओके, मसीह दज्जाल नहीं है, अहमदिया जमात मसीह दज्जाल नहीं है, मसीहा के दावी नहीं किया, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी रब करने का दावी नहीं किया। क्यों आप लोग इसको, आप लोग मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी और अहमदिया जमात को है सच्चा ईसा महदी माना पड़ेगा, और नहीं उसका झूठा बोलेगा तो मसीही दज्जाल मानना पड़ेगा। दो से एक मानना ही पड़ेगा। वो एक आम दज्जाल कज़्ज़ाब नहीं है, वो मसीह दज्जाल है। मेरे भाइयों, समझने के लिए कोशिश करिए। मसीह दज्जाल किसके कहते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पष्ट बता दिएगा, छोटा छोटा तीर दज्जाल आएगा, बाद में एक आएगा मसीह दज्जाल। मसीह दज्जाल का नाम लेकर, मसीह का असली मसीह का नाम लेकर दुनिया से कामयाबी नहीं आएगा, लेकिन ये होगा झूठा। आप लोग जब ये लोग अहमदिया जमात को कामयाबी देखकर आप लोग को क्या समझते हैं? ये आम छोटे से झूठा है। आप लोग झूठा जब बोलेगा ना तो मसीही दज्जाली बोलना पड़ेगा, और ना आप लोग अहमदिया जमात को सच्चा ईसा मानना पड़ेगा। लेकिन मैं तो बोला, इस लोग सच्चा नहीं किया है। झूठा मसीहा क्यों है? नबी करीम, पिछले बार में मैं बोला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला, ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्केर मशरिक की तरफ सफ़ेद मीनार के पास फजर के वक्त ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ुल होगा। लेकिन अहमदिया जमात का बुनियाद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब जब मसीहा दावी करेंगे ना, उस वक्त तो मीनारा नहीं मौजूद था। तो वो मसीहा नहीं है, वो रियल मसीहा नहीं है। अब देखिए, काफिर का फतवा, दज्जाल का कपाल पे काफिर लिखा रहेगा, तब भी इस निशानात भी अहमद जमात का पर फिट हुआ है। वह रियल मसीहा नहीं है, वह मसीह दज्जाल है, झूठा मसीहा है। आप लोग यहाँ ना बोला वह आम दज्जाल का जब है। 209 कंट्री में इसका कामयाबी हो रहा है। अब नहीं देख रहा हो, अब क्या है, अंधा है? आप लोग चोखे देखकर बोले कि नहीं देखा है, यह तो ठीक नहीं है भाई। आप लोग मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब को
मसीही दज्जाल बोला এবং मोहम्मद मौदूद अहमद खान अलैहिस्सलाम को सच्चा मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम बोले इस्लाम के विजय के लिए आगे आए, इस्लाम के बचाए, निजे बाँचे, खुद निजे बाँचे। अल्लाह अकबर। और उस अकीदा को जो ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में जिंदा, उस अकीदा को बात दे दीजिए, कुरान के खिलाफ है। जब आएगा दुनिया में तो ईसा अलैहिस्सलाम जब कुरान का आयत पढ़ेगा, मैं रिपीट करता हूँ, जब कुरान के आयत वो लोग ईसा अलैहिस्सलाम खुद नीचे पढ़ेंगे वो आकाश में है, यह हो सकता है? ये क्या अकीदा है आप लोग को? तो भाई एक दूसरे से दौला दौली बात करके एक होने के लिए कोशिश करें। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जिंदा कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कुरान के खिलाफ है। हम लोग तो गायब पे ईमान रखता है, हम लोग बोलता है, आप लोग बोलता है, आप लोग जानता है फरिश्ता गायब है, लेकिन आप लोग इस मसाला में जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे आप लोग बोलते हैं दो फरिश्ता की कात पर बढ़ देंगे। दुनिया शुरू से आज तक फरिश्ता गायब समझता है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के जब आएगा तो दो फरिश्ता आप लोग का पास नजर आएगा है? तो गायब कोई किधर जाएगा? भाई अकल के इस्तेमाल करिए भाई। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी एवं उसका खलीफा मसीही दज्जाल है। इसके मसीही दज्जाल बोले मोहम्मद मौदूद अहमद खान अलैहिस्सलाम को ईसा मेहदी अलैहिस्सलाम माने इस्लाम के विजय के लिए काज करिए।